Write down the heading AS20 earning per share. Right? Earning per share. Earning per share, this standard is a disclosure standard. You are not going to do any accounting entry in this. Like in all other accounting standard, possibly like in, AS 12, we made some accounting entries. AS 28, 26, we make some accounting entries. Here there is no accounting entry to be done. So write down no accounting entry. No accounting entry to be done. It is only a disclosure standard. It is only a disclosure standard. Okay? So, the disclosure standard is based on a formula. So, what is the formula for that? A simple formula of EPS is given, that is a ratio. Ratio is what? Net profit available for equity shareholder divided by weighted average number of equity share. So one thing should be clear for you, EPS is calculated only for equity shareholder, it is not calculated for preference shareholder. EPS is calculated for equity shareholder, it is not calculated for preference shareholder. The formula is very simple for EPS. Net profit available for equity shareholders divided by weighted average number of equity shares. Is that okay? Now comes the question, what is the net profit available for equity shareholder? So remember, it is by and large PAT, profit after tax. To put it more precisely, it means profit after ordinary and extraordinary items. Agreed? And after tax also, PAT. But remember, PAT will also be adjusted for two more items. Profit after tax will also be adjusted for two more items. PAT में हम interest का effect दे चुके होते हैं, but PAT में हम कभी भी preference से dividend का effect नहीं देते, और PAT में ना ही हम effect देते हैं corporate dividend tax on such preference dividend. So what you are going to do is, PAT is further adjusted. This point number is PAT minus preference dividend for current year. Preference dividend for current year. Whether provided or not. Whether provided or not. मतलब आपने उसका प्रोविजन किया है या नहीं किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा. ध्यान रहे, हम यहां पर अकाउंटिंग एंट्री नहीं कर रहे. अगर लॉस भी हुआ तो भी आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मकसद क्या है, कितनी अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, यह मकसद है आपका. तो जो कुछ भी चीजें आप इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हो मैक्सिमम, वो फिगर तक आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके पहले का जिन जिन लोगों का डिमांड्स है, हक है, वो माइनस करना पड़ेगा. सो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर करंट ईयर वेदर प्रोवाइडेड और नॉट माइनस डीडीटी ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एप्लीकेबल एनी. DDT on preference dividend if applicable any. Have you understood this part?
ओके, आई टॉक अबाउट इट, जस्ट गिव मी सम व्हाइल। प्रेफरेंस शेयर का मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, इज दैट ठीक है? तो बेटा जी मुझे बात बताओ, क्या क्या चीज हुई? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर करंट ईयर वेदर प्रोवाइडेड और नॉट, आई हैव सब्सट्रैक्टेड, माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड if applicable any, is what, my dear friend? The earnings available for equity shareholder. Now there is a small point which you should remember about the preference dividend. I'll write down what are the types of preference shares. Types of preference shares will include cumulative, okay, and the other one is non-cumulative. What is the meaning of cumulative and non-cumulative? Cumulative is, अगर एक साल for the absence of profit dividend is not given, it would be given in the next year or in the future year when there are adequate profits. This is the definition of cumulative preference shares. Remember, cumulative preference share का dividend minus करना ही है compulsory. क्यों? क्योंकि देखो, इस साल नहीं दिया तो अगले साल देना पड़ेगा, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल देना पड़ेगा, मगर देना पड़ेगा, बात तय है, क्योंकि ये कौन से टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स है? क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब यह है कि अगर किसी साल डिविडेंड नहीं दिया तो आगे देने की जरूरत नहीं है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड आप माइनस नहीं करोगे इफ इट इज नॉट डिक्लेयर्ड, right? Dividend to be reduced from PAT only if declared. Only if declared. Have you understood this point? Non-cumulative preference shares में से आप जो डिविडेंड है वो कब माइनस करेंगे पैट में से? ओनली व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। अच्छा, एग्जाम में क्या अज्यूम करना? एग्जाम में बाय डिफॉल्ट अज्यूम कीजिए हर एक प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है, तो जो मैंने आपको ऊपर लिख कर दिया वो सही है। तो क्या फॉर्मूला हुआ ईपीएस के लिए? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट माइनस व्हाट, वन मोर आइटम, डीडीटी ऑन व्हाट? Preference dividend. Is that okay? Dividend is to be reduced from PAT whether or not declared. तो ये वाली चीज तो आपको माइनस करनी ही है, ये वाली चीज तो आपको माइनस करनी ही है। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आप यहां तक आ पाए? तो चलिए देखते हैं हमने फॉर्मूला क्या लिखा था। फॉर्मूला लिखा था नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। न्यूमरेटर पार्ट हो गया, अब मेरी बात भरोसा मानिए, डिनोमिनेटर ही मैं डिस्कस करूंगा बाकी के स्टैंडर्ड में। सो दिस स्टैंडर्ड इज लॉजिकली फॉर डिनोमिनेटर पार्ट, ओके? सो आई विल राइट डाउन द हेडिंग ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। व्हाट इज दैट? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स outstanding. Weighted average number of equity shares outstanding. Weighted average number of equity shares outstanding. That's lovely. Now will you hear the next part? जरा ध्यान से सुनिए। जब मैं नंबर बोल रहा हूं तो फेस वैल्यू को भूल जाने का। फेस वैल्यू को कहीं कहीं पे मैं काम दे रहा हूं, बाकी फेस वैल्यू को भूल जाने का। नंबर्स बोल रहा हूं, नंबर्स मतलब कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे बाबा, एग्रीड? तो अब जरा देखिए, सुनिए क्या होता है। मान लेते हैं कि मैंने मेरे ओपनिंग शेयर्स
आउटस्टैंडिंग थे 40,000। फिर मैंने इश्यू किए ऑन 1st April 2015 अराउंड 10,000 शेयर्स। ये ओपनिंग शेयर्स एज ऑन 1/1/2015। ठीक है, एक्सक्यूज मी। थर्ड है, मैंने वापस इशू किए ऑन 30th September 2015 5,000 शेयर्स। और मैंने फोर्थ बायबैक किया ऑन 1/12/2015 10,000 शेयर्स। सो वेटेड एवरेज नंबर का मीनिंग ये होता है कि मुझे लिखना पड़ेगा 40,000 कितने पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग थे, ये 12/12 प्लस 10,000 इंटू 9/12, ओके, माई प्लस आई विल से 5,000 इंटू हाउ मच 3/12। 3/12 क्यों समझ में आ रहा है, ईयर एंड तक, माइनस, वाई माइनस, बिकॉज इट इज बायबैक। तो बायबैक का हम रूल क्या करेंगे, 10,000 इंटू 1/12। तुम समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, वो शेयर्स हमारे पास कब से अवेलेबल था, मैं उतना निकालने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आंसर क्या है, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आंसर आ जाएगा जो भी होगा, आंसर में हम इंटरेस्टेड नहीं है। समझ में आ रहा है कि मैं निकाल कैसे रहा हूं। इसको निकालने का और एक अल्टरनेटिव तरीका भी है। अल्टरनेटिव ऐसा है, शुरुआत में कितने आउटस्टैंडिंग थे 40,000, तो मैं कहूंगा भाई 40,000 इंटू कितने समय तक आउटस्टैंडिंग थे। सो 40,000 1 से लेकर 1/4 तक, हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। सो कैन आई राइट डाउन, इट वुड बी 40,000 इंटू 3/12 प्लस आई विल राइट डाउन 40 में 10,000 और ऐड हो गए तो कितने हो गए बेटा जी, 50,000। ये इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव वे ऑफ डूइंग इट। तो कितना हो गया 50,000, जरा देखो कितना है, 1/4 से लेकर 30/9 कितने महीने हो गए, 6 मंथ्स। तो मैं कहूंगा 50,000 इंटू 6/12 प्लस और कितने इश्यू हो गए 5,000। एग्रीड, 5,000 से लेकर कब तक, 1/12 कितने महीने हो गए, 10/11, 2 ही तो महीने हुए ना। तो बेटा जी हम क्या लिखेंगे, 55,000 इंटू 2/12। इसमें प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता है बायबैक होने के बावजूद भी। अब मेरा क्यूमुलेटिव कितना रह गया, 55,000 माइनस 10,000, तो मैं कितना लिखूंगा 45,000 इंटू 1/12। हैव यू अंडरस्टूड दिस 2 पार्ट्स। अब जरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दोनों का आंसर निकालो, सेम आएगा। दोनों का आंसर निकालो, सेम आएगा। अरे नाला कोई बंद कैलकुलेटर छोड़ के चला गया। पहले वाले का आंसर है 47,916.67। दूसरे वाले का भी आंसर मुझे पता है उतना ही आने वाला है। जिनको भरोसा नहीं कैलकुलेट कर देख लो। 40,000 इंटू 3/12 m प्लस 50,000 इंटू 6/12 m प्लस 55,000 इंटू 2/12 इज इक्वल टू m प्लस एंड
45,000 into 1 by 12 is equal to m plus memory recover. It is 4791.6.67. Have you understood? So एक क्या करना होता है, इश्यू किया से लेकर एंड ऑफ द ईयर, इश्यू किया से लेकर एंड ऑफ द ईयर, जब भी शेयर ऐड होंगे ऐड करो, जब भी शेयर बाहर जाएंगे बाय बैक क्या कर दो, माइनस. पॉइंट क्लियर? दूसरा वाला क्या है, अल्टरनेटिव तरीका, इसमें आज से लेकर जब नेक्स्ट इश्यू हुआ तब तक, नेक्स्ट इश्यू से अगले इश्यू तक या बाय बैक तक, और लास्ट वाला कैसे रहेगा, उस ट्रांजैक्शन से लेकर ईयर एंड तक, उस तरीके से निकालना. दोनों के आंसर सेम आते हैं. वन अप्रोच इज क्यूमुलेटिव अप्रोच एंड वन इज यू अज्यूम इट इज अ डिस्क्रीट. तो शुरुआत से लेकर जब से इश्यू किया तब से लेकर ईयर एंड तक. इज दैट ओके? लवली पीपल, अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग. देयर इज अ प्रॉब्लम इफ पेड अप वैल्यू अलग अलग है दो शेयर की. इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स, डिफरेंशियल राइट्स, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स. आई विल राइट डाउन द हेडिंग, इक्विटी शेयर्स विथ differential rights, equity shares with differential rights. इसमें होता क्या है, let's take an example. In a company there are 5,000 shares of rupees 10 each, और फिर मैं लिखता हूं फुल्ली पेड अप. फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं ना ऐसा. और इधर मैं लिखूंगा 6,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. ओके, रुपीज 5 पेड अप. दिस इज पार्टली पेड अप. This is what? Partly paid up. Okay? एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं और ये लिखते हैं they were outstanding as on 1/1/2015. They are outstanding from what date? 1/1/2015. But ये वाले शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे from 1st July 2015. मतलब 6 months. डिफरेंशियल पेड अप कैपिटल. इज दैट ओके? तो जरा ध्यान से सुनो, मुझे क्या करना पड़ेगा. मुझे फर्स्ट स्टेप पर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने पड़ेंगे. ये इक्विवेलेंट नहीं है, इसने 10 रुपए पूरे दिए, इसने से 5 ही दिए. मैं कैसे कह सकता हूं कि दोनों को ईपीएस सेम मिलेगा? नहीं, ईपीएस अलग होगा 5 वाले को. तो बेटा जी हमको क्या करना है, इस 6,000 शेयर्स को फुल्ली पेड अप ऑफ 10 में कन्वर्ट करना. 6,000 के 5 पेड अप है, तो कैन आई से 3,000 के 10 पेड अप हुए. इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन टर्म्स ऑफ ₹10 फुल्ली पेड अप. सो अब देखो मेरा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे आएगा. वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. आई विल राइट डाउन weighted average number of equity shares. I'll write down 5,000 into 12 by 12. सही है? ये क्लिक हो रहा है क्या? प्लस, अब देखो जरा ध्यान से, प्लस एवरीवन बी अजाइल एंड अलर्ट, 3,000. कैसे है 3,000? इक्विवेलेंट नंबर इनटू 6 by 12. Why 6 by 12? वेटेड एवरेज नंबर निकालना. इश्यू कब की है? इश्यू कब की है? 1/7. सो 1/7 से लेकर ईयर एंड 31st December कितने महीने होते हैं? 6. So I'll write down 3,000 into 6 by 12. Can I have the answer please? 5,000 into 12 by 12 m plus 3,000 into 6 by 12, that is nothing but 6,500. This is one way of calculating weighted average number of equity shares. जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं लिखते जाना है, रुकना नहीं है. ईपीएस वाले स्टैंडर्ड में रुकना नहीं.
ठीक है? सो क्या समझे? नहीं बताओगे? समझे क्या तुम कि आपको वेटेड एवरेज नंबर निकालते वक्त दोनों की फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो उसको इक्विवेलेंट नंबर्स में कन्वर्ट करो। आई बात ध्यान में? चलिए, बेटा अब हम नेक्स्ट लेवल पर चलते। नेक्स्ट, डेट फ्रॉम विच वेट्स नीड्स टू बी असाइन्ड। Date from which weights needs to be assigned. कौन सी तारीख से वेट असाइन करने होते हैं? डेट फ्रॉम विच वेट्स नीड्स टू बी असाइन्ड। डू यू एग्री? डेट फ्रॉम विच वेट्स नीड्स टू बी असाइन्ड। सुनिए मेरी बात ध्यान से। इसका मीनिंग क्या है? इसका कॉमन सेंस मीनिंग यह है कि अगर मैं किसी को कहूं कि मुझे तुझसे इंटरेस्ट चाहिए, फील करना है सर, तो वो मुझे क्या बोलेगा? जब से आपने मुझे लोन दिया है तब से मुझे आप इंटरेस्ट मांग सकते हो। मीटर इंटरेस्ट का चालू होगा लोन देने के बाद में। एग्रीड? उसी एंगल से अगर मैं कहूं कि मैं आपसे ईपीएस मांग रहा हूं, एक फील करो, ईपीएस मांग रहे जैसे, तो कब से वो ईपीएस मांग सकता है मुझसे? जब से वो मुझे पैसा दे चुका है इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। तो वो डेट हर बार तो आसान होती है। जैसे एक एग्जांपल, शेयर्स इशूड फॉर कैश, बहुत सिंपल। जिस दिन कैश मिल गई, जिस दिन शेयर्स अलॉट हो गए, उस दिन के आगे हम वेट कंसीडर करना शुरू कर देंगे, पीरियड कंसीडर करना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? बट कुछ केसेस में इट इज कॉम्प्लेक्स। When debentures are converted into equity share, from what date? When bonus shares are issued, what date? When amalgamation is in the nature of merger is there, or amalgamation in the nature of purchase is there, from what date should I consider the weights? Are you understanding my point? कौन सी तारीख से मैं वेट कंसीडर करना शुरू करूं? सो शैल वी सी इट? देखो, एग्रीड? सुन रहा है ना तू? अगर बोनस शेयर्स हुए, जो कॉमन है मैं वो आपको वो पढ़ा रहा हूं, बोनस शेयर्स हुए, तब आपको वेट्स लेना है। assign weights from beginning of reporting period। इसका एक सीधा एग्जांपल है, इसको बोनस शेयर को कब इशू किया है इसको नजरअंदाज कर कर पूरे 12 महीने का वेट असाइन करो। मतलब 12 डिवाइड बाय 12 बोनस शेयर के लिए। बोनस शेयर भले ही इशू किया होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर, इग्नोर कि 3 महीने का ही वेट असाइन करना है। असाइन द वेट ऑफ होल 12 मंथ्स। क्यों? अब तुम मुझे क्वेश्चन पूछोगे क्यों? लॉजिक वही याद रखना, पैसा कब मिला हमें? बोनस शेयर में कोई पैसा नहीं मिलता, वो शेयर्स पहले फ्री रिजर्व के फॉर्म में हमारे पास में ही थे, अब सिर्फ कन्वर्ट किस में हो गए? शेयर्स में। मतलब धंधे में वो पैसा तो हमेशा से ही लगा हुआ था ना, धंधा उससे अर्निंग कमा रहा था ना उस पैसे से। इसीलिए बोनस शेयर के लिए उन्होंने क्या कहा कि असाइनमेंट ऑफ वेट शुड बी देयर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। एग्रीड? मतलब जनरली ये क्या आएगा आपको समझाने के लिए, 12 बाय 12 ये बोनस हुआ। दूसरा, शेयर स्प्लिट। शेयर्स स्प्लिट, शेयर स्प्लिट का मतलब समझते हो?
नहीं समझते हो? शेयर स्प्लिट मतलब 10 शेयर में आपका एक शेयर स्प्लिट हो गया. 1 शेयर इज सब डिवाइडेड इंटू हाउ मच? 10 शेयर्स. सपोज साल के शुरुआत में एक शेयर आउटस्टैंडिंग था और अभी बीच में एक शेयर को कितने हिस्सों में तोड़ दिया गया? 10. अब तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो पहले वाले शेयर को वेट दोगे 6 महीने का और बचे हुए 10 शेयर को 6 महीने का. नो, लॉजिकली इट वाज दैट 1 शेयर ओनली विच गॉट कन्वर्टेड इनटू हाउ मेनी? 10 शेयर. तो शेयर स्प्लिट को जब आप शेयर्स लेते हो तब देन यू शुड असाइन द वेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. शेयर स्प्लिट और कंसोलिडेशन. assign weight from the beginning of reporting period. Agreed? Next, amalgamation in the nature of merger. Amalgamation in the nature of merger. Amalgamation in the nature of what? Merger. और दूसरा कौन सा? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस. अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ, जब मैं मर्जर बोलता हूं, इसका देख लो ट्रीटमेंट कैसे होता है. आई विल टेक द वेट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. नाउ आस्क मी द क्वेश्चन व्हाई. क्योंकि बेटा वो उस केस में ओनर्स आर वन एंड द सेम ओनली, और जो कोई भी एडजस्टमेंट होता है वो रिजर्व्स में होता है. मर्जर मेथड में ओनरशिप रिमेन्स विद द सेम पीपल ओनली. असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर कैरिड एट बुक वैल्यू. ऑल द रिजर्व्स आर आल्सो बीइंग टेकन ओवर. सो माय डियर फ्रेंड, एक्चुअली द ओनर इज वन एंड द सेम. एंड डियर फ्रेंड्स, कोई नया रिसोर्स नहीं आ रहा है, कोई पैसा नया नहीं आ रहा है, ना कोई खरीदी कर रहा है. उस केस में बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से ही ईपीएस निकालना है आपको. हम उनकी अर्निंग्स भी पूरे साल भर की कंसीडर करते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? अर्निंग भी पूरे साल भर की, और डिनोमिनेटर में भी आपको असाइन करते हो वेट अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. नेक्स्ट, फोर्थ वन, अमालगमेशन in the nature of purchase. Amalgamation in the nature of purchase. Right? इस केस में आपने वेट्स असाइन करने हैं. वेट्स फ्रॉम, you should assign the weights from what date? From the date of acquisition, or from the date when the amalgamation was effective. That's it. फोर्थ पॉइंट तक आ गए आप? ओके, अब एक और लिखते हैं, फिफ्थ वन, राइट शेयर्स. राइट शेयर्स एडजस्ट फॉर राइट फैक्टर. इसका मीनिंग क्या है हम बाद में देखेंगे. एडजस्ट फॉर राइट फैक्टर. एडजस्ट फॉर राइट फैक्टर. राइट शेयर्स पर क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में आता है. पिछले एग्जाम में भी आया था. राइट शेयर्स पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में. तो अब हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे ईपीएस कैलकुलेट करने के. इज दैट ओके? सो लेट्स बिगिन द गेम.
First QB, calculate the weighted average number of equity shares. First one, they have given you what? Opening balance. All right. How much they have given you the opening balance? 1800, Jan 1, 2001. Then issued shares for cash on what date? May 31. And November 1, buyback 300. And December 31, closing. They have done the buyback of how much? 300. तो देखो मैं कैसे सिखा रहा हूं इसको, क्या कर सकते हो? 1800 इंटू 12/12. चलो अभी बताओ आगे क्या करोगे? प्लस 600 इंटू May 31, मतलब 5 महीने बीत गए, 7 महीने इंटू 7/12 प्लस ये बायबैक हुआ बेटा, हाँ या नहीं? प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा. माइनस 300 इंटू नवंबर 1 मतलब 2/12. सो कैन आई से 2/12? इसका आंसर कितना आता है बेटा जी? 2100 शेयर्स. ये देखो यहां पर सॉल्व किया गया. ये इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है. क्या तरीका है? 1800 से लेकर 5 महीने तक. तो क्या करेंगे? 1800 इंटू 5/12 ब्रैकेट क्लोज प्लस मई 31 से लेकर नवंबर 1 कितने शेयर्स है? तो कैन आई से 1800 प्लस 600 इज 2400 इंटू नवंबर 1 तक 5/12. एग्रीड? प्लस कितना बोलेंगे बेटा जी? 2100. हाउ कम 2100? 2400 माइनस 300 इंटू कितना आ जाएगा? 2/12. क्या आपको समझ में आ रहा है? इन दोनों का आंसर 2100 ही आएगा. ऑलराइट, कर पाएंगे आप ये? ठीक है. नेक्स्ट केस स्टडी. यहां पर बेटा जी पार्टली पेड अप शेयर्स है 5 रुपीज. अक्टूबर 31 2001 है. तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? 1800 इंटू 12/12 प्लस कैन आई से 600 का प्रपोर्शनेट आधा. सो कैन आई से 300 इंटू हाउ मेनी मंथ? अक्टूबर, नवंबर, डिसंबर. सो कैन आई से 2/12. व्हाट इज द आंसर? 1850. क्या बात छोरे? यही लिख के आता क्या एग्जाम में? यूज करने का कैलकुलेटर. आगे से रॉन्ग आंसर दिया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. सही में या तो सही दे, नहीं चुप रहे. ऐसा कुछ भी बोलेगा तो कैसे चलता है? ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करने का. सी है, जेल में जाएगा ऐसा मिस्टेक्स किया तो. इसीलिए है ना, सिली मिस्टेक्स के लिए इंस्टीट्यूट बहुत एग्रेसिव रहती, मार्क्स नहीं देती. तुम बोलते इतनी सी तो मिस्टेक हुई. अबे बॉस, इतनी सी मिस्टेक करके साइन कर दिया ना, जेल में डायरेक्ट. उसने थोड़ी ना फ्रॉड किया था, वो सत्यम वाले ने. उसके सीए ने एक ही छोटी गलती कर दी. कैश बैलेंसेस इतना हैवी था, चेक नहीं किया. कैश जेल ही चलता है, चलता है, आज है जेल में. समझ में आ रहा है छोरे? रॉन्ग आंसर इज नॉट अलाउड. 1850. शाबाश. चले मैडम आगे. मैडम रेडी? ये रहा. अब बेटा जी इसमें क्या हुआ है? कैलकुलेट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड बेसिक ईपीएस. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स attributable to the equity shareholder, company X is 5 lakh and company Y is 4 lakh. Number of equity shares are 5 lakh in each company. Company X acquires company Y by issuing shares in the ratio of 1:5. That is to say 1 share for every 5 held. आगे, with the acquisition taking place on 1st October 2003. तो मैं इधर 2 हेडिंग करता हूं. Amalgamation in the nature of merger. Yes, you need to write down the assumption if nothing is mentioned. Amalgamation in the nature of purchase. सुन तो लो गांव वालों, किसने किसको उठाया? कंपनी X acquires Y. एग्रीड? तो बेटा जी देखो इसका ईपीएस क्या आता है? X प्लस Y. अर्निंग
अर्निंग ऐड कर लेने की पूरे साल भर की, डिवाइड बाय शेयर्स इश्यूड इन एक्स ओनली। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक्स कितना है 5 लाख प्लस 4 लाख, अर्निंग ऐड कर ली क्या, डिवाइड बाय शेयर्स ऑलरेडी कितने थे 5 लाख है क्या इन ईच कंपनी। सो कैन आई नॉट से 5 लाख तो एक्स के पहले से ही थे, अभी एक्स ने और कितने इश्यू किए 1 फॉर एवरी 5। सो कितने वाई के कितने शेयर्स थे 5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 5, दे मस्ट हैव इश्यूड 1 लाख शेयर्स। सो कैन आई से 1 लाख, लिखा क्या है मैंने, शेयर्स इश्यूड इन एक्स ओनली। एक्स में शेयर्स कितने थे पहले के 5 लाख और अभी नए कितने इश्यू किए 1 लाख। इज दैट ओके? सो बेटा व्हाट इज द ईपीएस, 9 लाख डिवाइड बाय 6 लाख। सो योर आंसर इज 1.5। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? हाँ नहीं? द नेक्स्ट, amalgamation in the nature of purchase, EPS is equal to x plus proportionate y। तुम उनका पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा तुमको, आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन तुमको उनका प्रॉफिट मिलना शुरू होगा, डिवाइड बाय शेयर्स issued in x only applying weight। मतलब ऊपर भी प्रोपोर्शनेट लेना नीचे भी प्रोपोर्शनेट लेना। कैसे आएगा देखो, x की अर्निंग तो पूरी मिलेगी 5 लाख प्लस 4 लाख ये जो अर्निंग है y की, ये हमको 1 अक्टूबर के आगे मिलेगी। सो क्या मैं बोल सकता हूं 3 महीने की मिलेगी? तो बताओ कितना आएगा, 4 लाख इंटू 3/12, 4 लाख इंटू 3/12 1 लाख। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसका लॉजिक था 4 इंटू 3/12। सो क्या गया 5 लाख प्लस 1 लाख, से यस, डिवाइड बाय व्हाट, आई से एक्स का तो 5 लाख आउटस्टैंडिंग था ही, शेयर्स जो इश्यू कर रहे हो 1 लाख ही कर रहे हो, बट इसको वेट लगा देने का। वेट कितने महीने के 3/12। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ऊपर की y की इनकम प्रोपोर्शनेटली और नीचे जो शेयर्स इश्यू किए, कब इश्यू किए 1 अक्टूबर को, तो कितने महीने और आगे हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स। सो बेटा जी मेरा आंसर कितना आएगा इधर, नीचे का बेस कितना था 1 लाख इंटू 3/12 25,000। सो कैन आई से 6 लाख डिवाइड बाय 5 लाख 25,000। What is the EPS? 1.14। सो मर्जर मेथड में क्या करने का, अर्निंग भी पूरी लेने की और नीचे वेट्स भी पूरे 12 महीने के लेने के 12/12। मगर जब मैं अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बोलूं, ऊपर जो नई कंपनी आ रही है उसकी अर्निंग प्रोपोर्शनेट लेने की, जितना अपना हक बनता है 3 महीने का, नीचे वेट भी असाइन करने के प्रोपोर्शनेटली। कितने महीने के 3 महीने के। जल्दी से फुर्ती से लिख कर ले लो। इसमें हेडिंग क्या लिखोगे इस केस स्टडी की, वेट्स इन केस ऑफ अमाल्गमेशन।
क्या एग्जाम में क्या? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में एक अज्यूम करके सॉल्व करने का, एग्जाम में दोनों नहीं लिखना. इन मेजॉरिटी ऑफ द केस सॉल्व इट विथ परचेस मेथड, बिकॉज दैट व्हाट्स हैपेंस इन द रियल लाइफ. परचेस मेथड में और एक अजम्पशन ये बच्चा बोल रहा सही है कि प्रॉफिट्स हैव एक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर. ये अजम्पशन भी करना चाहिए. मर्जर में करो या नहीं करो चलता है, क्योंकि मर्जर में पूरा प्रॉफिट ही तो लेना है ना. यस. ये हो गया यहां तक? बड़े आ गया? Yes. Now I am going to teach you about the right shares. Be agile and alert what I am teaching you. ठीक है? एग्जाम में जो आता है वो राइट शेयर्स. हेडिंग लिख दीजिए, केस स्टडी राइट शेयर्स. सुनिए. A company has 20 lakh shares outstanding as on 1st April. On 30th September, it makes a right offer of 1 for every 5 at rupees 50 per share. The fair market value of one share come right prior to the right issue was rupees 100. Earning for current year was 11 lakh, previous year were rupees 8 lakh. EPS competition will be. Now listen to me carefully. What does this mean? Right shares means the shares which are issued for cash and which are bonus. तुमको एक बात पता है ना, shares are issued generally at a price which is lower than the market price. Are you aware of this right shares में? Otherwise why will existing shareholders be inclined towards buying it? वो तो ऑलरेडी मार्केट से ही बाय कर लेंगे ना. तो अब जब कैश के लिए शेयर इश्यू होता है, वेट आर असाइन, weights are assigned when cash is received. But in case of bonus shares, weights are assigned from beginning of the reporting period. ओके अब हम फंस कैसे गए देखो. शेयर इश्यू किया एक, मगर उसमें दो पार्ट है, एक बोनस कंपोनेंट और एक द कंपोनेंट विच इज इश्यूड फॉर कैश. लफड़ा ये हो गया कि कैश के लिए हम वेट कब से असाइन करते हैं? फ्रॉम द डेट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड.
और बोनस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू असाइन द वेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। तुमने ऐसा ऑफर सुना है क्या, कॉम्बो ऑफर? कॉम्बो ऑफर सुने कि नहीं सुने? कि जैसे आपको एक ऑफर दिया जाता है कि इस चीज के साथ ये चीज फ्री। किंडर जॉय बेस्ट, किंडर जॉय के साथ वो टॉयज। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू पेइंग सो मच? आर यू पेइंग फॉर टॉयज or are you paying for the chocolate? I don't think so we are paying for the chocolate, we are paying for the toys generally. Kids are more attracted towards toys. You getting? एक कॉम्बो चीज ऑफर जिसमें कौन से पार्ट का क्या है हमको नहीं पता चलता, तो ऐसे चीज के लिए हमको इसको वेट देना है when the cash is received, और weights are assigned from the beginning of the reporting period. इसके लिए एक नई चीज उन्होंने इश्यू की जिसका नाम है राइट फैक्टर। राइट फैक्टर, राइट फैक्टर ध्यान रहे, इज अप्लाइड टू ओपनिंग शेयर्स विच आर आउटस्टैंडिंग। सर कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या चालू है, थोड़ी सी देर के लिए सुनते रहो, लास्ट में तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो मैंने कहा राइट शेयर में दो कंपोनेंट, एक वन इज इश्यूड फॉर कैश और दूसरा वन इज विच इज इश्यूड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस। कैश के लिए फ्रॉम द डेट व्हेन कैश इज रिसीव्ड से ये लगता है हमारा वेट, और बोनस के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। अब इसमें लफड़ा ये है कि एक ही शेयर को दो वेट कैसे लगाऊं सर मैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट फैक्टर नाम का एक कंपोनेंट निकालते हैं, एक रेशियो निकालते हैं। ये राइट कंपोनेंट हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, इट शुड बी मल्टीप्लाइड for the shares which are outstanding at the beginning of the reporting period. How do we do that? Shall we understand it? अब जरा ध्यान से सुनते जाइए मैं क्या कर रहा हूं। बेटा जी 1 divided by 1 is how much? 1। क्या बकवास कर रहे हो सर? 1। 10,000 into 1 कितना हो जाएगा? 10,000। सर क्या बकवास कर रहे हो? 10,000 into 1.2, 12,000. This 0.2 stands for bonus. ये शेयर्स को बढ़ाने का काम करता है। राइट फैक्टर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अगर एग्जाम में राइट फैक्टर आपका 1 से कम आ गया, उधर ही बंद कर दो काम, डोंट सॉल्व ओनली। राइट फैक्टर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अगर 1 से नीचे आया तो उधर ही रुक जाओ, इट कुड बी 1 और ग्रेटर देन 1। क्योंकि राइट शेयर्स का राइट फैक्टर का निकालने का पर्पस ही क्या है, वो जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, उसमें बोनस कंपोनेंट घुसाना है। सो जब मैं 1 पॉइंट कुछ करता हूं, जब मुझे बोनस एलिमेंट घुसाना है, तो बोनस एलिमेंट घुसाने के लिए मैं क्या करता हूं, 1 पॉइंट समथिंग करता हूं। वो जो पॉइंट समथिंग है वो बोनस एलिमेंट होता है, और वो बोनस एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड देना पड़ता है, हाँ या नहीं? इसीलिए मैं जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करता हूं मैं? राइट फैक्टर से। अब राइट फैक्टर कैसे निकलता है जरा ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए। राइट फैक्टर इज इक्वल टू fair market value of share before issue divide by fair market value of share after right issue। इसको प्यार से हम दूसरा नाम देंगे, तुम डर जाते इसलिए मैंने पहले दिया नहीं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस बोलते इसको, भाड़ में जाए, अपने क्या लेना देना। मैं तो तुमको सीधा सिंपल से बता रहा हूं, राइट इशू करने से पहले की फेयर मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय राइट इशू हो जाने के बाद में उसकी वैल्यू क्या है। तो बेटा जी मैं क्या कहूंगा, ऊपर कितना है बेटा जी, बिफोर राइट इशू द फेयर वैल्यू वाज व्हाट, 100, एग्रीड। आफ्टर राइट इशू की वैल्यू मुझे पता नहीं है, मुझे निकालनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट के लिए मुझे आपको क्या सिखाना पड़ेगा, और एक फॉर्मूला सिखाना पड़ेगा, थ्योरेटिकल
एक्स राइट प्राइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट। क्या गलत कह रहा हूं, क्लियर भाषा में लिख रहा हूं। जो शेयर राइट इशू करने के पहले ही मौजूद थे इनटू फेयर मार्केट वैल्यू बिफोर राइट, मतलब पहले की मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितने शेयर्स थे और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, दोनों को ऐड कर लो टोटल, प्लस प्रोसीड्स रिसीव्ड। प्रोसीड्स रिसीव्ड मतलब कितना रोकड़ा मिला, डिवाइड बाय द होल थिंग, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट। क्या समझे, क्या लिखा? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इनटू फेयर मार्केट वैल्यू बिफोर राइट। सो देखो मुझे बताओ कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, 20 लाख। तो मैंने क्या करना है, 20 लाख इनटू व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू 100, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कितना पैसा मिला। तो बेटा उन्होंने कहा एक राइट शेयर फॉर एवरी 5, सो कैन आई से 20 लाख डिवाइड बाय 5, 4 लाख शेयर्स राइट के तौर पर इशू किए गए, एक शेयर हर एक 5 के लिए। सो 20 लाख डिवाइड बाय 5 कितने आ गए, 4 लाख। सो कैन आई नॉट से 4 लाख, एक शेयर से कितना पैसा मिलने वाला था मुझे, 50, क्योंकि मैंने इशू कितने में किया था, 50। गो बाय द कॉमन सेंस, कितना पैसा मिला। सो मैं क्या बोलूंगा, 4 लाख इंटू 50 रुपीज डिवाइड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, पहले के 20 लाख और अभी कितने 4 लाख। तो बेटा अब मुझे बताओ कि कितना आ रहा है, 20 इंटू 100 एम प्लस 4 इंटू 50 इज इक्वल टू एम प्लस मेमोरी रिकवर डिवाइड बाय 24 लाख। सो दैट इज 91.66, यस और नो। यदि आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था, हम ये सारा कांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालनी है। सो ये कितनी आ जाएगी, 91.66। अब मुझे बताओ कितना आया हमारा राइट फैक्टर। सो 100 डिवाइड बाय 91.666 कितना आ रहा है, 1.09090। ए नन्हे मुन्ने सरकार, ये 0.0909 एक चीज आपको ये बता रहा है कि हमारा आंसर राइट है, क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 1। और 0.90909 जो आगे आ रहा है, इट इज द बोनस फैक्टर। एग्रीड? अब जरा आंसर देखना, तुमको क्लिक होता है क्या? मैंने ईपीएस निकालने का तरीका आपको क्या सिखाया था? मैंने ईपीएस निकालने का तरीका आपको यह सिखाया था, अर्निंग्स। व्हाट इज द अर्निंग करंट ईयर की, 11 लाख। 11 लाख डिवाइड बाय, शुरुआत में कितने आउटस्टैंडिंग थे, 20 लाख इनटू, मेरा आंसर आएगा 1.09090। क्या मतलब समझ रहे हो आप? सर 101, मैं बोनस फैक्टर डाल चुका फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इनटू कब इशू किया, कब है, 30 सितंबर, हाँ या ना, 30 सितंबर। बेटा जरा ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं, 9 महीने हो गए क्या? तो मैंने कहना है जी 9/12। सर आप तो बोल रहे थे कि सर पूरे साल भर का लेना है, सब्र रखो हो जाएगा। प्लस में करूंगा, राइट? अभी टोटल शेयर कितने हो गए, 14 लाख। सो बेटा जी मैं क्या, 14 नहीं 24 लाख
इंटू 3/12। सर क्या किया आपने, जरा सुनो ना, जरा सुनो ना। 4 लाख में बोनस एलिमेंट घुसा हुआ था कि नहीं घुसा हुआ था? जो 4 लाख शेयर्स मैंने इशू किए थे, कुछ कैश के लिए इशू किए, एग्रीड, और कुछ शेयर कैसे इशू किए मैंने? फ्री ऑफ कॉस्ट। जरा एक फील देखना, ये अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे पैसा कितना मिला? तो क्या ना, इससे 4 लाख इंटू 4 लाख इंटू कितना 50, कितने रुपए मिले मुझे? एक काम करते, इसको सिंपल कर देते, 4 लाख इंटू 50 कितने मिले मुझे? 200 lakhs। ऑलराइट। अगर इफ कंपनी हैड इश्यूड शेयर्स at original fair market value, then company would have issued how much? 200 divided by 100, only 2 lakh shares। बोलो ना हाँ। बट कंपनी ने कितने इशू किए? 4 लाख। तो क्या समझ रहे हो, इसमें बोनस एलिमेंट गया कि नहीं गया? नहीं क्लिक करो अभी भी, नहीं समझ में आ रहा अभी भी। देखो रुपए कितना मिला, रोकड़ा कितना मिला? रोकड़ा इससे ज्यादा नहीं मिला, 4 लाख इंटू 50। अब ये बात तो तय हुई कि तुमने 4 लाख इशू किया, कितने रुपए मिले? 50। तो कितना हुआ है तुम्हारे पास रोकड़ा? 200। ऐसा समझो कि राइट शेयर्स थे ही नहीं, ये मैं नॉर्मली इशू कर रहा था। नॉर्मली अगर मैं यही शेयर इशू करता तो मैं कितने रुपए में इशू करता? 100 रुपए में। अगर मैं 100 रुपए में इशू करता तो बेटा जो रोकड़ा मिला 200 डिवाइड बाय 100, कितने इशू करता? 2 लाख। इसका मतलब 4 लाख में ऐसे भी शेयर है जो मैंने फ्री में इशू किए, और 4 लाख में ऐसे भी शेयर है जो मैंने क्या किया? कैश में इशू किए। मैं आपको कह रहा था कि 1.09090 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सेकेंड ना। सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? 1090, it represents the bonus element, say yes or no। सो बेटा जी पहले मैंने 9 महीने के लिए बोनस एलिमेंट दे दिया, when I multiplied the 20 lakh into 1.0909 into how much did I say? 9/12। तो मैंने बोनस एलिमेंट दे दिया, एग्रीड। अब तुम क्या बोलते हो, बोनस एलिमेंट को सर कितने पीरियड तक देना चाहिए आपने? फुल ईयर। तो मैं देने के लिए तैयार हूं ना। मैं क्या कहता हूं, प्लस 4 लाख, इसमें बोनस एलिमेंट घुसा हुआ है और इसमें कैश का भी एलिमेंट घुसा हुआ है। तुमको याद है तुमने कहा था कैश एलिमेंट के लिए प्रोपोर्शनेट पीरियड और बोनस एलिमेंट के लिए पूरे साल भर का पीरियड। बोनस एलिमेंट के लिए अभी कितने महीने बाकी है? 3। बोलो ना हाँ। सो बेटा जी क्या मैं बोल सकता हूं 24 लाख में 4 लाख भी गया, मैंने अभी 24 लाख कर दिया। 4 लाख को मुझे देना है कितना पीरियड? कैश के लिए जो इशू किया उसके लिए 3 महीने का पीरियड, और जो बेटा जी बोनस एलिमेंट था उसको कितना? पूरे 12 महीने का पीरियड। उसमें मैं 9 महीने का ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अभी देना कितना बाकी है? 3 महीने का। इसीलिए 24 लाख इंटू 3/12। अब इसको मल्टीप्लाई मत करना 1.09090 से अगेन। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि वो बोनस एलिमेंट सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को लगाता है, और मैंने ऐसी एक नोट लिख कर दी क्या नहीं दी कि हम बोनस एलिमेंट या जो राइट फैक्टर आता है किसको लगाते हैं? सिर्फ ओपनिंग बैलेंस। हैव यू अंडरस्टूड? तो मुझे बताओ 11 लाख इंटू 20 लाख डिवाइड बाय 1.09090 इंटू 9/12 डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 3/12, मतलब बोनस एलिमेंट को 9 लाख इधर दे दिया और 3 महीना इधर दे दिया। 9 मंथ्स उधर, 3 महीना इधर, मतलब टोटल कितना हो गया? 12 महीना। ओपनिंग वाले शेयर्स को कितना देना था? 12 मंथ्स। पहले 9 महीना दे दिया 20 लाख को, और 24 लाख में वो 20 लाख भी है, उसको कितना दे दिया? और 3 महीने का। और बेटा जी 4 लाख में कैश वाला कंपोनेंट भी है, हाँ या नहीं? उसको कितने महीने का देना था? सिर्फ 3 महीने का, तो उसको 3 महीने का आगे दिया मैंने। यस और नो? सो बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज माय ईपीएस? नीचे का वर्किंग कर बताओ।
कितना आ रहा है? 22.3635 आ रहा है क्या? एग्रीड? नीचे का बेस देखो कितना आ रहा है. सो बेटा 11 लाख डिवाइड बाय 22.3635 कर कर बताओ ईपीएस कितना आ रहा है? $0.49187 आ रहा है क्या कुछ? एग्रीड? तो जरा देख लो हमारा आंसर भी कितना आ रहा है. 0.48 आ रहा है. अपना 0.49 क्यों आ रहा है? अपना कहां गड़बड़ हुआ? अच्छा अपना कितने आ रहे थे शेयर्स? इन्होंने क्या किया है, ये पूरा ही डिटेल में ले लिया. 100 डिवाइड बाय 91.67 लिया ना. सो एक काम करो, 20 lakhs इंटू 100 डिवाइड बाय 91.67 एग्रीड इंटू 9/12 इज इक्वल टू m प्लस एंड 24 lakh इंटू 3/12 इज इक्वल टू m प्लस मेमोरी रिकवर. प्री राइट पीरियड 6 महीने का है क्या? ईयर एंड क्या है? ओ, अपन ने 9 महीने का ईयर एंड पकड़ रहे थे, वो कितने महीने का पकड़ रहे हैं? 6 मंथ्स. मतलब देखो 31 मार्च पकड़ रहे वो ईयर एंड है. तो 31 मार्च में जो हमने ये निकाला ना 9/12, ये कितना हो जाएगा? 6/12. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये कितना हो जाएगा? 6/12. अब जरा कैलकुलेट कर कर देखो तो 20 इंटू, मैं वही बोला इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? इंटू 6/12 इज इक्वल टू m प्लस 22.9090 आ रहा है अभी. चेक कर लो. ये 6/12 किया मैंने. ईयर एंड क्या एज्यूम किया? 31 मार्च. तो 30 सितंबर को अगर इश्यू किया है, ये इधर दिख रहा है क्या? 30 सितंबर. तो बेटा जी कितने महीने हो जाएंगे? 6 मंथ्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. समझ रही है बात? तो इधर मैं वापस एक बार निकाल कर दे दूं ईपीएस. जगह की कमी होने की वजह से प्लीज ध्यान से समझिए. 11 लाख डिवाइड बाय 11 लाख इज अर्निंग डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 1.090 इंटू 6/12 ब्रैकेट क्लोज प्लस 24 lakh into 6/12. Have you understood this? Why 6/12? चलो मुझे अभी आंसर बताओ. इसका फाइनल आंसर क्या रहा है? 0.48015. So this is your final answer. ये क्वेश्चन को मॉड्यूल में है ना बहुत खींच खींच के सॉल्व किया. इसके लिए जब तक हम ऊपर का समझ पाते हैं नीचे का गायब हो जाता है. तो अभी थोड़ी देर में मैं इसको याद करा दूंगा आपको क्या क्या करना है, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट.
चलिए आ गए आप यहां तक? तो क्या क्या चीजें समझ पाए अभी तक आप? व्हाट आर यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? किस तरीके से हमको राइट फैक्टर निकालना पड़ता है और किस तरीके से राइट शेयर्स के वक्त हमको ईपीएस निकालना है। फॉर्मूला एकदम सीधा सिंपल था। क्या फॉर्मूला देखिए, ईपीएस इन केस ऑफ राइट शेयर्स इज इक्वल टू, you should write down, the formula is earnings available, right, divide by I'll write down number of shares outstanding। ये देखो फॉर्मूला लिख कर दे रहा हूं मैं। EPS in case of right shares is equal to, can I say, अर्निंग्स, इसमें कोई चेंज नहीं है, डिवाइड बाय, आई विल राइट डाउन ओपनिंग शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू राइट फैक्टर इनटू समथिंग डिवाइड बाय 12। नाउ व्हाट समथिंग डिवाइड बाय 12? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू द न्यू इशू, मतलब राइट शेयर्स इशू किया तब तक। अभी अपने केस में कितना, 6 महीने लिया अपन, प्लस कैन आई राइट डाउन टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लस आई विल राइट डाउन टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू बैलेंस पीरियड डिवाइड बाय 12। इधर वापस कोई भी बच्चा राइट फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट द राइट फैक्टर? वेरी सिंपल, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर डिवाइड बाय फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर। वो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ आफ्टर है उसको क्या बोलते हैं हम? राइट, थ्योरेटिकल राइट प्राइस। थ्योरेटिकल राइट प्राइस का फॉर्मूला फिर क्या हुआ कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग into fair market value plus proceeds received divide by what? total number of shares। हमको एक शेयर की प्राइस निकालनी है, एवरेज प्राइस। चलो बेटा अभी आ गया, ये आ गया। सो यस, हमारा आंसर आ गया। यस, नाउ आई एम सपोज टू टीच यू डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, राइट शेयर्स में और एक बात बताना भूल गया मैं। राइट शेयर में एक चीज और ध्यान रखना, ये देखो ये वाला, यही वाला क्वेश्चन था। पिछले साल का ईपीएस कितना था? 8 लाख। अब जरा देखो, पिछले साल का ईपीएस हमको रीस्टेट करना पड़ता है। ईपीएस ऑफ प्रीवियस ईयर, ये कितना था? 8 लाख डिवाइड बाय, पिछले साल तो शेयर 20 लाख ही थे ना आउटस्टैंडिंग। सो बेटा 8 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, कितना ईपीएस दिखा होगा बेटा जी? 0.4, यस और नो? बेटा अब इसको रीस्टेट करना पड़ता है, ये पिछले साल की बात है। अब रीस्टेटेड ईपीएस, रीस्टेटेड ईपीएस ये देखो कैसे आएगा। सो आई विल राइट डाउन 8 लाख डिवाइड बाय 20 lakhs इंटू 1.09090। मतलब इसको बोनस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि बोनस एलिमेंट हम कब से देते हैं? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। सो इसको रीस्टेट करना है, तो बेटा मुझे बताओ 20 लाख इंटू 1.09090 कितना आता है? सो कैन आई से 8 लाख डिवाइड बाय 21,818, सॉरी 21,81,800। इज दैट ओके? ऐसे ही आएगा ना? या 8,81,818 कर दूं क्या? अब ठीक है छोरी? इज दैट ओके? अब चलो मुझे बताओ ईपीएस कितना आ जाएगा? 0.36666। दिस इज कॉल्ड एज रीस्टेटेड।
तो जब आपको पिछले साल का ईपीएस रीस्टेट करना होता है तो क्या करना है बेटा जी, सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ में, राइट फैक्टर के साथ में, नो वेटेज टू बी गिवन अबाउ देन दैट, 12 महीने का पूरा देने का और ऊपर अर्निंग सेम रखने की। तो जरा देखो ये क्या हुआ, आपका रीस्टेटेड ईपीएस कितने की बात चल रही थी, ये देखो नाउ रिपोर्टेड 0.36 बोल रहे थे ना अपन, दैट्स इट, 0.36666 था, ये 0.37 है। इज दैट ओके? चलिए अब हम पढ़ते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। लिख लीजिए हेडिंग बेटा, डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तुम सब लोग इधर बैठे हुए, तुम कौन हो? पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब क्या? आज नहीं हो कल बन जाओगे, आज नहीं हो कल बन जाओगे। यू आर पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सिमिलरली माय डियर फ्रेंड, पोटेंशियल इक्विटी शेयर मतलब जो आज इक्विटी शेयर नहीं है फ्यूचर में बन जाएगा। एग्जाम्पल कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, राइट? देन आई कैन से वारंट इशूड। वारंट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाते किसके अंदर? इक्विटी शेयर के अंदर। वारंट इशूड। So what are the potential equity shares? Potential equity shares means convertible debentures, convertible preference shares, warrants, etc., etc. Is that okay? Are you getting my point? ध्यान से सुनो गांव वालों, मैं क्या कह रहा हूं अगली बात। सुन रहे हैं ना तू? ध्यान से सुनना अभी बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि कन्वर्टिबल डिबेंचर है, इसका मतलब क्या है? माय debentures are going to get converted into equity shares. When they are going to get into equity shares, सिंपल सा लॉजिक है। पहले एक चपाती थी, खाने वाला एक आदमी था। अब चपाती एक है, खाने वाले दो हो गए। एग्रीड? ये पहले वाले आदमी को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? तो ये प्रूडेंस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर आपकी अर्निंग को शेयर करने वाले लोग फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो वो कितने से अर्निंग को कम करेंगे एक शेयर की, वो अभी बता दो। डाइल्यूटेड ईपीएस नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि अर्निंग कितने से कम होने वाली है एक शेयर होल्डर को। मान लो एक तुमने एफएम में पढ़ा होगा पी रेशियो। पी रेशियो का फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज EPS divided by MPS, earning per share divided by market price of one share will give you the P ratio. अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक टाइम्स में, कि P रेशियो के बेसिस पर आपके शेयर का एनालिसिस होता है। तुमने एक शेयर का एनालिसिस किया एकदम तूफान, उसका EPS था 500 रुपए, राइट? डिवाइड बाय मार्केट प्राइस व्हाटएवर XYZ, और तुमने वो शेयर्स खरीद लिए दबाकर। तुमने शेयर्स खरीदे और उसके बाद में देखते हो तो कुछ दिनों बाद मार्केट प्राइस कम हो रही। तुम तो बोल रहे हो यार बहुत अच्छा रेशियो था, गलती क्या हो गई? तुमने एक चीज नोटिस नहीं की कि आने वाले समय में देयर वर मोर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच वर गोइंग टू गेट एडेड आउट, बिकॉज ऑफ विच अर्निंग वुड कम डाउन पर शेयर। सो दैट इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो वो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। तो पहला समझ जाओ कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। वो ऐसे लोग होते हैं जो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स में। अब डीपीएस कैसे निकलता है? अगर मान लो डिबेंचर गॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, एग्रीड? डिबेंचर गॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। इससे हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर क्या फर्क पड़ेगा? डिनोमिनेटर में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस है, नंबर्स आउटस्टैंडिंग प्लस आपके डिबेंचर्स कन्वर्टेड,
ये दोनों ऐड हो जाएंगे कि नहीं, नंबर्स बढ़ जाएंगे, सभी को क्लिक होता है। मगर बेटा डिबेंचर अगर कन्वर्ट हो गए तो इंटरेस्ट का मीटर भी बंद हो जाएगा। इंटरेस्ट का मीटर बंद हो गया मतलब इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मगर ये कंपनी है बाबू मोशा है, इस कंपनी में 1 रुपया भी कमाए तो 30% टैक्स भरना पड़ता है। तो इंटरेस्ट बढ़ा तो क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का सेविंग हुआ तो क्या देना पड़ेगा, टैक्स। से यस और नो। सो माय फॉर्मूला वुड बी नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। क्योंकि अगर डिबेंचर कन्वर्ट हुए तो मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा, इंटरेस्ट वो अमाउंट से। मगर जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा मुझे उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स। क्योंकि मुझे हमेशा प्रॉफिट कौन सा लगता है, पैट वाला। तो समझ में आया क्या, when debentures gets converted into equity share you take net profit plus interest minus tax effect and divide by what, number of shares plus debentures converted। रुको तो सरी, ये डिबेंचर की बात हो गई। दूसरा वाला देखते, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स गॉट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इक्विटी शेयर्स। देखो कैसे आएगा, डीपीएस। अब ये सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड बराबर है, बोलो ना हाँ। ए छोरे मुझे एक बात बता, अगर ऐसा हुआ तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो गए तो क्या हमको उनको डिविडेंड देना पड़ेगा क्या, क्योंकि तो किसमें कन्वर्ट हो गए, इक्विटी में ही कन्वर्ट हो गए। तो जो हमारा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालते थे, दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ना, इसमें क्या ऐड कर दूंगा मैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटा जैसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करूंगा, आपने क्लिक करना, मुझे और एक चीज नहीं देनी पड़ेगी, डीडीटी। तो मैं न्यूमरेटर को बढ़ा देता हूं डीडीटी से। आपका अब लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं, मतलब न्यूमरेटर में सोचने का कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना ज्यादा मिलेगा, ऐसा होने की वजह से न्यूमरेटर उससे बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या करने का, नंबर्स कितने से बढ़ेंगे, नंबर्स को उतने से चेंज कर देने का। आपको क्या मिल जाएगा, डीपीएस, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। वारंट के केस में क्या होता है, अगर मान लो वारंट है, वारंट आर दोज विच आर इश्यूड फॉर कंटिंजेंट कंसिडरेशन, कि तुमने इतना परफॉर्मेंस अचीव किया तो तुमको इतने रुपए मिलेंगे, इतने शेयर्स मिलेंगे। तुमसे मिल कुछ नहीं रहा है मुझे, ना कैश है ना कुछ। तो उस केस में बेटा ध्यान रहे, ईपीएस कैसे निकलता है, एनपी प्लस 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स प्लस वारंट्स कन्वर्टेड। ध्यान रहे एग्जाम में 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इतना आसान है। सिर्फ ध्यान रहे डिबेंचर में नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऐड करो, मगर इंटरेस्ट का टैक्स इफेक्ट लेस करो, डिवाइड बाय नंबर्स प्लस जितने डिबेंचर गॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। दूसरा डीपीएस इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें क्या करने का, जितना पहले नेट प्रॉफिट था प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स पहले के जितने आउटस्टैंडिंग थे प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और वारंट के केस में क्या, नेट प्रॉफिट प्लस 0, क्योंकि वारंट के वजह से हमारी कोई भी इनकम नहीं बढ़ती। वारंट क्या होता है, जब आप आगे बढ़ोगे सीए फाइनल में तो आ जाएगा ध्यान में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स प्लस वारंट्स कन्वर्टेड, दैट्स इट। हो गया जी। Shall we see now? Here is our answer now. ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, कन्वर्टेबल डिबेंचर। जरा देखो बेटा, नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज हाउ मच, 1 करोड़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है, 50 लाख। बेसिक अर्निंग पर शेयर दिया 2 लाख। इतना दयालु एग्जामिनर खुद ने निकाल कर दे दिया। अगला
number of 12% convertible debentures of the value of 100 each debenture is converted into 10 equity share. Okay, interest expense for the current period, कहीं पर भी ये नहीं बताया कि how many debentures are there, value is not given, question mark. So indirectly इस interest से आपको निकालनी पड़ेगी face value of debenture. So मैं इधर बताऊं क्या, face value of debenture is equal to, can I say 12 lakh divide by 12%, कितना आएगा 100 lakhs. Are you getting my point? तो अब बेटा मुझे क्या करना है, हाउ मेनी आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड, ये देखो जरा देखो तो सही, प्रॉफिट कितने का था पहले 1 करोड़ है क्या, 1 करोड़ माइनस नहीं सॉरी प्लस प्लस 12 लाख माइनस 3,60,000, इंटरेस्ट ऐड करते और उसके ऊपर का टैक्स इफेक्ट क्या करते माइनस, जरा बता छोरी जल्दी से, 12 लाख माइनस 3,60,000, द फिगर शुड बी हाउ मच 8,40,000 डिवाइड बाय, आई विल से कितने शेयर्स थे पहले 50 लाख, बोलो ना हाँ, प्लस कितने इशू होने वाले, जरा देख बेटा 100 लाख, अब इनका रेशियो सुन, नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 100 ईच, फेस वैल्यू कितनी है 100, सो कैन आई से 100 डिवाइड बाय 100 लाख डिवाइड बाय 100, I'll get number of debentures outstanding. 100 lakh is the total face value. Value of one debenture is 100. So can I say 1 lakh? And 1 lakh is going to get converted into 10 equity share. So how many new equity share? 10 lakh. So क्या मैं बोल सकता हूं 50 लाख plus 10 lakh equity shares? बोलो मेरा आंसर कितना आता है? So 1.8066 ये डाइल्यूटेड ईपीएस है. क्यों डाइल्यूटेड ईपीएस है? क्योंकि पहले का बेसिक कितना था 2 के कंपैरिजन में ये क्या है डाइल्यूटेड. रिमेंबर ये ज्यादा भी आ सकता है कुछ केसेस में. द ईपीएस कैन बी समटाइम्स मोर ऑल्सो. मतलब 2 के नीचे 1.806 आ रहा था ना, नीचे का ईपीएस ऐसा आ सकता है 2.1. डाइल्यूटेड कितना आ रहा है 2.1. That is not called as dilutive, that is called as anti-dilutive. उल्टा भी हो सकता है. Remember, standard ये कहता है anti-dilutive EPS will not be reported. Standard ये कहता है anti-dilutive EPS will not be reported. Only which EPS will be reported? Dilutive. जिससे कि नुकसान होगा वो वाला EPS बताओ. Dilutive दिखाओ, anti-dilutive मत दिखाओ. अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन है ना कि कैसा हो सकता है एंटी डाइल्यूटिव. आएंगे क्वेश्चंस ऐसे, तुम देख लेना. एंटी डाइल्यूटिव भी होता है. अब वो सारी चीज तो रिवीजन में नहीं कवर कर पाऊंगा ना. करना चाहता हूं बट देन आई वुड डोंट हैव टाइम. गेटिंग माय पॉइंट? एंटी डाइल्यूटिव इज नॉट टू बी रिपोर्टेड. ओनली विच वन इज टू बी रिपोर्टेड? डाइल्यूटिव. बैठ मत, लिख जल्दी से. More than the basic EPS. When you are solving the question, when the dilutive is more than the basic EPS, don't report it. Anti-dilutive बोलते हैं उसको. Anti-dilutive is not reported. Only dilutive is reported. हो गए बच्चे? वेरी गुड, कीप इट अप.
बहुत खतरनाक तरीके से लेजी है रे तू। हाँ, कुछ चीजें ना जिंदगी में अपने को ही करनी पड़ती बेटा। क्यों तू फास्ट क्यों नहीं लिखता फिर? हर चीज स्लो नहीं करते, कुछ चीजें स्लो ठीक है, लिखना फास्ट पड़ता है। निकाले फोटो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, निकाल ले, निकाले फोटो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर लिखा कर फास्ट, निकाल लिए। अच्छा, ओह, नाउ वी आर ऑन द लास्ट कंसेप्ट ऑफ ईपीएस। फिर लास्ट में जाते वक्त आपको समरी दूंगा कि ईपीएस में पढ़ा क्या क्या है आज। पहला पढ़ा था बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस में न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कौन सी अर्निंग लेना ये सिखाया। फिर पढ़ा है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में पहला वाला था वेटेड कैसे निकालना, फिर पार्टली पेड अप का वेटेड कैसे निकालना, फिर वेट्स कब से देना, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में कब से देना, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस में कब से देना, राइट शेयर्स का कैसे निकालना, बोनस शेयर्स का कैसे निकालना। एग्रीड। और फिर मैंने आपको उसमें बताया था कि जब कभी भी आप मर्जर मेथड में या राइट शेयर्स में या बोनस में, आपको पिछले साल का भी ईपीएस क्या करना पड़ता है, जाके रीइंस्टेट करना पड़ता है। वो चीज हमने देखी। और फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। ऑलराइट, अब एक और रसगुल्ला क्वेश्चन। रसगुल्ला तो नहीं बोलोगे तुम? अपना आंसर क्या आया था? यस, इट इज वही फिगर, यही तो है ना, डिवाइड बाय 60 लाख। यस, ये नहीं, ये ज्यादा हैवी हो जाएगा। एक रसगुल्ला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है जो मैं अभी करा रहा हूं, बट अगर आ गया तो क्या करेंगे? फिर बोलते होगे सर रिवीजन बैच की थी, क्वेश्चन आया नहीं ये वाला, इसलिए करा लेते हैं। क्या रिस्क कम रखते हैं? Yes, you all are requested now to write down this question. Question number 15. Question number 15. जरा फुर्ती से लिखना। This is the toughest question which can be asked. Hello, yeah, are you ready? So it's critical question. What does this question speak about? देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि there are more than one dilutive earning per share or there are more than one dilutive potential equity share, then what do we do? मतलब एक कंपनी के बुक्स में ऐसा हो सकता है कि आपके पास कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हो, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी हो
और वारंट्स भी हो। ऐसे सिनारियो में क्वेश्चन ये आता है कि किसको पहले रिपोर्ट किया जाए। देयर इज अ सीक्वेंस इन विच यू शुड रिपोर्ट द डाइल्यूटिव ईपीएस। जब एक से ज्यादा पोटेंशियल डाइल्यूटिव इक्विटी शेयर्स है तो आपका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखिए। XYZ लिमिटेड हैज 10 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड द नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू दिस शेयर इज ₹35 लाख। तो बेटा बेसिक ईपीएस कितना हुआ? बेसिक ईपीएस कितना हो मुझे इतना बता दो। So can I say the basic EPS is how much? Basic EPS is 35 lakh divided by 10 lakh is how much? 3.5. All right, आगे बढ़ते हैं। The average fair value of the share during the year is 75. पूरे साल भर में अपने शेयर की कीमत कितनी थी? 75 रुपीज। आगे, the company had issued the following potential equity shares. जरा देखो, 1 lakh 10% preference shares of 100 each to be converted into 2 equity shares. Option to subscribe 2,50,000 equity shares at ₹60 each. Say yes. और अगला क्या है बेटा जी? 2 lakh 12% convertible debenture of 100 each to be converted into 3 shares. मुझे करना क्या होता है ऐसे केस में? पहली एक वर्किंग नोट करनी है जो हमेशा आपको कंपलसरी करनी ही पड़ेगी। हर एक डाइल्यूटिव या पोटेंशियल इक्विटी शेयर, डाइल्यूटिव वर्ड नहीं यूज करता हूं, हर एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर के वजह से कितने अर्निंग पर इंपैक्ट होगा और कितना नंबर्स पर इंपैक्ट होगा, पहले यह निकालना पड़ता है। तो अर्निंग्स पर कितना इंपैक्ट होता है जरा देखिए। यदि प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो गए तो बेटा 1 लाख इंटू 2, सही है। नंबर्स कितने से बढ़ जाएंगे मेरे इक्विटी शेयर के? 2 लाख। एग्रीड? यस। आगे क्या लिखा हुआ है? मेरी अर्निंग पर क्या इंपैक्ट आएगा? तो 1 लाख इंटू 100 ये मेरी फेस वैल्यू आएगी क्या? इंटू 10% कितना आता है? 1 लाख इंटू 10 ये फेस वैल्यू है। इंटू कितना परसेंट बेटा जी? सॉरी, 1 लाख इंटू 100 इंटू 10% कितना आ रहा है? 10 लाख। उसके ऊपर लगने वाला कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 10% प्लस 10% कितना? 11 लाख आ रहा है क्या? तो बेटा जी मेरा अर्निंग बढ़ जाता है 11 लाख से। कितना इंक्रीमेंटल ईपीएस है? तो मैं 11 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करता हूं, कितना आता है बेटा जी? 5.5। बेटा मैं अभी आपको बता दूं कि ये डाइल्यूटिव है, ये एंटी डाइल्यूटिव है, क्योंकि मेरा बेसिक 3.5 है, मगर जो मेरा बढ़ने वाला है वो कितने से? 5.5 से। ये मैं अभी आपको बता देता हूं, आगे जाते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये डाइल्यूटिव नहीं है, ये कम नहीं करेगा ईपीएस को, ये ईपीएस को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा मैं आपको समझाता हूं। इज दैट ओके? मूविंग ऑन। ऑप्शंस टू सब्सक्राइब 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹60 ईच। एग्रीड? ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, जरा ध्यान से सुनिए। मैं कितने ऑप्शन दे रहा हूं? तो मैं कहूंगा कि मैंने 2,50,000 दिए। पूरे 2,50,000 डाइल्यूटिव नहीं है, जो फ्री का कंपोनेंट जा रहा है ना वो डाइल्यूटिव है। बिना पैसे लिए दिए हुए शेयर्स ये मेरे ईपीएस को कम करते, क्योंकि देखो जो पैसा देकर आएगा वो तो शेयर कैपिटल बनेगा, कैश आएगी, कैश आने से वो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होने से उस पर भी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। मगर जो बिना कैश दिए शेयर कैपिटल बन रहा है वो मेरे ईपीएस को डाइल्यूट करता है। तो वो कैसे निकालना जरा ध्यान से देखो, मैं आपको सिखा रहा हूं नंबर्स कैसे निकालना। सो मैंने कहा इश्यू कितने कर रहे? 2,50,000 माइनस मुझे पैसा कितना मिलेगा? 2,50,000 इंटू 60, मैं उसको डिवाइड बाय करता हूं 75 से। मतलब अगर 75 में इशू करता तो कितने इशू कर रहा हूं? सो आई विल गेट हाउ मच आई हैव इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरा देख बेटा कैसे करेंगे। 2,50,000 इंटू 60 ये मिल रहा है मुझे, डिवाइड बाय 75। मतलब बेटा अगर मैं रोकड़ा 75 रुपए लेकर करता जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है,
तो हम कितने इशू कर पाते? सिर्फ 2 लाख। मगर इन्होंने कितने कर दिए? 2,50,000। मतलब बेटा जी मेरे नंबर्स बढ़ गए 50,000 से। ये समझ आ रहा है क्या? मगर अर्निंग पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। यस और नो? सो इंक्रीमेंटल ईपीएस इज 0, अर्निंग कुछ नहीं और नंबर से 50,000। से यस और नो? यस। मूविंग ऑन, 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर। बेटा 2 लाख इंटू 100 इंटू 12%, 2 लाख इंटू 100 इंटू 12%, बताओ कितना आ रहा है? 2,40,000 आ रहा है क्या? सॉरी 24 लाख आ रहा है क्या? हाँ जी बेटा। अब इस पर से आप क्या माइनस कर दीजिए? टैक्स रेट माइनस कर दीजिए 30%। कितना आएगा? 16,80,000। मतलब मेरी जो अर्निंग बढ़ेगी वो कितने से बढ़ेगी? सिर्फ 16,80,000 से। देखो ये क्या है? ये मेरा फेस वैल्यू इंटू 12% माइनस टैक्स रेट। मगर बेटा नंबर्स कितने से बढ़ जाएंगे? तो बेटा 2 लाख विल बी कन्वर्टेड इंटू 3, तो 6 लाख हो जाएंगे क्या? एग्रीड? तो बेटा जी अब मुझे बताओ कितना आएगा? 16,80,000 डिवाइड बाय 6 लाख, कितना आएगा? 2.8। बेटा जो जो चीजें बेसिक ईपीएस से कम है वो डाइल्यूटिव होंगे। मैं अभी बता रहा हूं, बेसिक 3.5 था, बेसिक से कम होने वाले सारे डाइल्यूटिव है। मगर इसका प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। जो सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव है उसको नंबर 1 दो, जो उसके बाद में है उसको नंबर 2 दो, और जो लास्ट वाले को उसको नंबर 3 दो। तुम्हें पता चला मैंने क्या कर रहा हूं? सबसे लोएस्ट नंबर 1, उसके बाद में नंबर 2 और उसके बाद में नंबर 3। आप यहां तक लिखकर रेडी हो जाइए, फिर हम आगे चलेंगे। Increase in earning available to equity shareholders on conversion of potential equity shares. Just write and be ready till this point. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो आप? स्टेप नंबर 1 पर रैंकिंग निकालते हो पहले आप, है ना? रैंकिंग निकल गई क्या? रैंकिंग 1, 2 एंड 3। जब रेडी होंगे तो आगे चलूं?
हो गया क्या छोरे तेरा? यस, देन लेट्स बिगिन देन। अब बेटा इसके आगे का चीज आप और मैं दोनों साथ में करेंगे, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। सुनिए जरा, नेट प्रॉफिट एज ऑलरेडी रिपोर्टेड कितना है? सो आई बिलीव द नेट प्रॉफिट रिपोर्टेड वाज हाउ मच? कितना नेट प्रॉफिट रिपोर्टेड था? 35 lakhs। अब जो जो चीजें मैं पूछ रहा हूं मुझे बताते रहना, ठीक है? 35 लाख। बेटा व्हाट आर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग? 10 lakhs। सो ईपीएस कितना हुआ? 35 लाख डिवाइड बाय 10, 3.5 लाख। ये कौन सा ईपीएस हुआ? बेसिक, ठीक है? अब जरा गांव वालों जरा ध्यान से सुनो, इधर ध्यान प्लीज, 2 मिनट। इधर लेफ्ट हैंड साइड में जरा नजर डालो, उधर लिखा है ऑप्शन, डिवेंचर और 10% प्रेफरेंस शेयर्स। ये कोई मटके से नहीं आया ये फिगर ऐसे, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा था ना 1 2 3, उस सीक्वेंस में लिखा हुआ है। नहीं तो जो मर्जी आए वैसे लिख दोगे तो आंसर नहीं आएगा। समझ आ रही बात में? इसलिए सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग निकालने के बाद में इधर आओगे। अब नेट प्रॉफिट अभी कितना है बेटा जी? 35 लाख। उसमें ऑप्शन के वजह से बढ़ रहा है 0, तो ये रहेगा 35 लाख की। प्लीज समझो मैं क्या कर रहा हूं। ऑप्शन की वजह से आप देख लो उस कॉलम में 0 बढ़ रहा है कि नहीं? अर्निंग्स इंक्रीमेंटल इज 0, तो टोटल विल रिमेन 35 लाख ओनली। बट बेटा जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने बढ़ रहे हैं? 2 लाख, सॉरी 50,000। सो कैन आई राइट डाउन 50,000? इट विल बिकम 10.5 lakh. So now what would be my EPS? 35 lakh divided by 10.5, it will be equal to how much? 3.33. Agreed? बेटा जी पहले वाले से कम हुआ कि नहीं हुआ? यस, तो ये कौन सा हुआ? डाइल्यूटिव। दूसरा वाला 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर में नेट प्रॉफिट में कितने का इजाफा हो रहा है? कितना बढ़ रहा है बताओ? 16,80,000। इज दैट व्हाट यू से? नंबर्स कितने से बढ़ रहे बेटा? 6 लाख। तो बेटा जी टोटल कितना आ गया हमारा? हम कहेंगे 35 प्लस 16.8, इट इज इक्वल टू हाउ मच? 51.8। और 10.5 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 16.5। बोलो ना हाँ। तो बेटा ईपीएस कितना आएगा? 51.8 डिवाइड बाय 16.5, इट इज इक्वल टू हाउ मच? 3.13939। आप देख रहे हो पिछले बार से भी ये कम है। मैंने कहा तो था ये भी कैसा है? डाइल्यूटिव। मैंने लास्ट वाले को कहा था कि वो एंटी डाइल्यूटिव है। मैं प्रूव करके दिखाता हूं वो एंटी डाइल्यूटिव आएगा। प्रेफरेंस शेयर की वजह से अर्निंग में कितने का बढ़ोतरी हुआ है? 11 lakhs। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने से बढ़े? 2 lakhs। तो जरा देखो ये क्या हो जाएगा? 51.8 प्लस 11 इज इक्वल टू हाउ मच? 62.8। और ये हो जाएगा 18.5। अब जरा देखो 62.8 डिवाइड बाय 18.5 इज इक्वल टू हाउ मच? 3.3945। जब इस फिगर से मतलब पिछले फिगर से ये ज्यादा है तो ये डाइल्यूटिव नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? एंटी डाइल्यूटिव। इट इज एंटी डाइल्यूटिव। ये डाइल्यूटिव था, ये डाइल्यूटिव था। लास्ट में जो रिपोर्ट होगा वो ये वाला फिगर रिपोर्ट होगा। तुम तुम्हारे फाइनेंशियल्स में 3.39 नहीं बताओगे, कितना बताओगे? 3.13। जहां तक डाइल्यूटिव हो रहा था वहां तक ही दिखाओगे। घर में जाके आप सीक्वेंस चेंज कर देना, ऊपर नीचे कर देना, और आप देखना आपका आंसर अलग आएगा। सीक्वेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव वारंट्स, फिर उसके बाद में डाइल्यूटिव डिबेंचर, और फिर उसके बाद में डाइल्यूटिव कौन? 10% प्रेफरेंस शेयर्स। एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली टू एवरीवन? यस।
हो गया छोरी? गुड. Shall we now move on?